Assalamu alaikum dear students. This is my second lecture, and in the first lecture particularly I started from the formation of sentence, and then we discuss about the subject, verb and object, and then we came to the personal pronouns as well as subject noun is also subject, as well as the pronoun is also subject, and then we discuss about the tense, means how we can make the sentence, formation of sentence, and then sentence can be positive sentence, affirmative, negative, or interrogative. Sentence formation of sentence is very essential, particularly for speaking purpose, for writing purpose, and for any other. Therefore, you must know about which words or which things are very much important for the formation of sentence. Now let's see, yesterday we discussed, we call her here for interview, right? Now see, some things are very much we call her here. Now this is what, these things are very much important, this one as well as this one. Okay, now see, this is the subject, this is verb, and this is object. Subject, verb and object, these are very much important for the formation of sentence. Now if we have the subject plural, or suppose first or second person, in this tense we don't apply anything. Suppose if we have, in the last class we discussed, he calls her here for interview. Okay, so we apply calls. ये calls हमने क्यों अप्लाई किया? Because of the simple present tense. Simple present tense. Now in the last class we started and discussed about simple present tense. Simple present tense and its structure. In the last class we also discussed its function. Simple present tense is most important tense. Simple present tense tells the present routine का मकसद ये है कि जो रूटीन अभी हमारी चल रही है, जो हमारी पहले थी रूटीन वो हमारे पास रूटीन है, जो अभी हमारी पहले रूटीन चल रही है, या किसी भी इंसान की जो रूटीन की बात जब करता है तो देन उसको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। नाउ सी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला जो काम है वो है रूटीन, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। रूटीन, नाउ एडवर्ब ऑफ रूटीन नोट कर लें। एडवर्ब ऑफ रूटीन, जहाँ पर हमारी मिस्टेक आती है, एडवर्ब ऑफ रूटीन जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे सपोज हम यहाँ से शुरू करते हैं, डेली, ठीक, वीकली, मंथली, ईयरली, occasionally, mostly, always, rarely, all these are words of routine। एक बार नोट कर लें कि ये जो वर्ड्स रूटीन के वर्ड्स हैं ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और किसी टेंस में इस्तेमाल नहीं होंगे। इस वजह से एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रूटीन वी अप्लाई इन सिर्फ जस्ट रूटीन्स, एंड दैट रूटीन का जो टेंस है, रूटीन का जो मकसद सेंटेंस है हम बनाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं या सिंपल पास्ट में बनता है।
अब we can use them in the sentences. He visits us daily. He visits us daily. It cannot be, suppose he is visiting us daily. Now this is a wrong sentence. ये सेंटेंस गलत है. ये सेंटेंस क्यों गलत है? इसके रीज़न सिर्फ ये है, दिस वर्ड. अगर ये वर्ड आप निकाल देंगे तो ये सही हो जाएगा. अगर ये वर्ड निकालेंगे नहीं, अगर ये वर्ड लगना है तो देन दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट सेंटेंस. वाई? बिकॉज रूटीन है. या अनदर सेंटेंस, शी ऑलवेज speaks truth. Always indicates for routine. ये जो always है ये adverb of routine है. Always लगाने के बाद कभी भी आप continuous tense या perfect tense नहीं लगाएंगे. She always speaks truth. Suppose अगर उस sentence में ऐसे है, तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. और ये रॉन्ग किस वजह से है? सिर्फ इस ऑलवेज की वजह से. वाई? बिकॉज ऑलवेज शोज द रूटीन, और रूटीन का जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब एक तो ये है, और दूसरा जो मसला है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक रूटीन में हो रही हैं, कायनात के हिसाब से, साइंस के हिसाब से रूटीन में हो रही हैं, वो एज इट इज़ हो रही हैं. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. फ्रॉम द ईस्ट. अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, एक साइंटिफिक ट्रुथ भी है, और ये रूटीन में है. ये जो है किसी और टेंस में नहीं होगा. इट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सपोज अगर हम ये लिखें द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, तो इट विल बी कंसिडर नॉट अ गुड सेंटेंस. गलत तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है अब प्रेजेंट को कह रहे हैं कि अभी राइज कर रहा है, बट रूटीन में स्टैंडर्ड सेंटेंस जो है वो है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. द ट्रेन रीच्ड ऑन द टाइम. द ट्रेन स्टॉप्स या रीच एट 9 o'clock. ये शेड्यूल को अगर शो करता है, अगर शेड्यूल को शो करेगा तो भी इट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. स्कूल के टाइमिंग्स, ट्रेन के टाइमिंग्स, शेड्यूल्स, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ, और इसी तरीके से रूटीन, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे. राइट? अब तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस सीखे. पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं. अब फर्दर इसके सीखेंगे, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली दे आर वीक एंड दे must learn about the use of the sentence, how to form the sentence, how to develop the sentence, and they must have the knowledge and they must remember the tenses. Now further, see now. We discussed about the yesterday in the last class also we discussed about the affirmative sentences of simple present tense.
अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की दो जो हैं स्ट्रक्चर से, एक स्ट्रक्चर है जब हमारे पास आई, वी, यू एंड दे होता है, तो देन वी डोंट अप्लाई एनीथिंग। हम टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही डिस्कस कर रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो दैट इज थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। दे गो टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वी डोंट अप्लाई एनीथिंग। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है या जब हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, तो हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। मगर जब हमारे पास जो सेकंड है, दिस इज फर्स्ट वन एंड सेकंड स्ट्रक्चर ये है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सपोज थर्ड पर्सन सिंगुलर हम किसको कहते हैं, ही, शी, एट या सिंगल नेम एनी, सपोज अली है, तो देन वी जो है अप्लाई एस ई एस विद द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस ई एस, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस अप्लाई करेंगे। सपोज गो की जगह पर क्या हो जाएगा, गोज टू कॉलेज, राइट। ये गोज हमने लगाया जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है ये है ही, शी, इट या सिंगल नेम अली हो, तो एस या ई एस हम लगाएंगे। ये दो स्टेप। तीसरा हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब क्या करना है कि ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस दोनों, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस है, बयानी जुमले, नो नेगेटिव नो इंटरोगेटिव। अब हमारे पास जब सेंटेंस है नेगेटिव या इंटरोगेटिव, राइट, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, जब हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो देन हम क्या करते हैं, देन वी नीड हेल्पिंग वर्ब। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और डू एंड डज। डू एंड डज लगने के बाद हम एस या ई एस नहीं लगाते, जैसे ये डज में ई एस ऑलरेडी लगा हुआ है, एस या ई एस नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, राइट। वर्ब में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वी डोंट अप्लाई एनीथिंग। ऐसे ई एस खास करके नहीं लगता क्योंकि ई एस डज में लग गया, राइट। तो डू किसके साथ लगता है ये बात नोट कर लें, आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू लगता है। और डज किसके साथ लगता है, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास कौन सा, ही, शी, एट या सिंगल नेम, उनके साथ डज लगता है। जिसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस जिनके साथ हम लगाते हैं उनके साथ डज लगता है, राइट। एस या एस किसके साथ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो हैं ही, शी, इट या सिंगल नेम, एक कोई नेम सिंगुलर नेम हो। अच्छा, इसके लगने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के डू और डज है। और हेल्पिंग वर्ब तब लगते हैं जब हम इसी टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हों। ओके, नाउ ही डजंट गो टू कॉलेज, ठीक है, ही डजंट गो टू कॉलेज। नाउ सी, हमने यहाँ पर डज लगाया। और इसी तरीके से अगर डू की बात कर रही, दे डोंट अटेंड क्लास, राइट। नाउ सी, यहाँ पर दे के साथ हम डोंट लगाया और ही के साथ हम डजंट लगाया। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है और ये बोर्ड साफ नहीं हो रहा सही तरीके से। शहबाज भाई,
अच्छा, फर्दर वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस ऑफ डू एंड डज. ये बोर्ड साफ नहीं हो रहा, इसको थोड़ा स्टॉप करें. ठीक. So let's further discuss about simple present tense. We discuss about the negative sentences, do and does, and further for interrogative sentences. For interrogative sentences particularly, whenever there are interrogative sentences, we apply helping verb before the subject. Suppose do है, do they attend their classes daily? Question mark. This is what we put do before subject, and subject is they. Attend is verb, their classes object, and daily is adverb of routine. Okay. Does he meet you here? That is a question mark. The subject is, if the subject is third person singular, he, she, it या single name, then we apply does. Does she cook daily? So this is what do and does. This is the interrogative sentence. These are the interrogative sentence. ये interrogative sentence है. और interrogative negative sentences भी होते हैं, जिस तरीके से do you not drive a car? ठीक, that is what interrogative negative sentences. does को इस्तेमाल करते हैं. let's see. does he not drive his car? These are interrogative negative sentence. So overall we learned simple present tense. Simple present tense is most important tense. Again I am going to repeat. Simple present tense कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता जब वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सेंटेंस जिसमें नॉट ना हो, नेगेटिव ना हो और इंटरोगेटिव ना हो. उसमें एक चीज़ होती है कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके सब्जेक्ट होता है, जैसे अली है, इट है, शी है, ही है, तो वर्ब के साथ ऐसे यस लगता है सिर्फ. बाकी दूसरों के साथ जैसे आई, वी, यू, दे, अगर प्लूरल जो है सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते. और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो रूटीन के लिए लगता है, हैबिट्स के लिए लगता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं हैबिट्स, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, शेड्यूल्स, स्कूल के शेड्यूल होते हैं, बसेस के शेड्यूल होते हैं, ट्रेन्स के शेड्यूल होते हैं. और इसी तरीके से बाकी जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं उन सब के लिए लगता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखिए आप, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक तो डू है, दूसरा डज है. और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो. अब ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या सिंगल नेम. ये जब सब्जेक्ट होते हैं तो हम डज इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं. और डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, डू और डज जो है वे मेन वर्ब भी है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब भी है. डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो. और इसी तरीके से वी डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस, और इसी तरीके से वी डिस्कस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड देन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ वी विल मूव फर्दर एंड वी विल लर्न अनदर टेंस, एंड इट वाज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी विल लर्न अनदर टेंस.
जैसा कि we completed the first tense, it was the simple present tense. Now we have started another tense, and that is about the continuous tense. Continuous का मकसद है progressive. Progressive का मकसद है going on. This tense has only one function, and that the function means जिसके काम आता है. It shows going on action. Shows going on action. ये वो चीज़ दिखाता है कि जो अभी काम चल रहा है, जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो भी काम सिर्फ अभी हम कर रहे हैं और काम हमारा प्रोग्रेस में है, वो सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में होगा. एक ही फंक्शन है इसका. कंटिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव और गोइंग ऑन. ठीक है, इसका ये एक ही फंक्शन है. और कंटिन्यूस जो है, जो भी कंटिन्यूस टेंस जहाँ भी होगा, समझ लें वो इंग फॉर्म लेता है. इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. ये बात नोट कर लें. इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. इंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म. जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग. तो कंटिन्यूस जो है वो बेसिकली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है. इट शोज गोइंग ऑन एक्शन. ठीक है, और इट टेक्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये तो वर्ब की बात आ गई. क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब में, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, बयानी जुमले में, देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब. बट हियर देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स. स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर में सीखेंगे कि ये टेंस कैसे बनता है. हमारे पास जो है इज, एम, आर प्लस इंग फॉर्म. ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स इसके. और हेल्पिंग वर्ब के सवाल ये नहीं बनता. इज, एम, आर और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इंग फॉर्म लगता है. अब हमें पता चलेगा कि इस कहाँ किसके साथ लगाते हैं हम, एम और आर किसके साथ लगाते हैं. नाउ सी, इज अप्लाइड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके साथ हमने डज लगाया या एस या ईएस लगाया. इज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हम इज लगाते हैं. और आई इज अप्लाइड विथ ओनली, एम इज अप्लाइड विथ ओनली आई. और आर जो है बाकी सबके साथ वी, यू, दे के साथ हम लगाते हैं. राइट. और नोट करें कि इसका जो है फंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही फंक्शन है कि जो काम मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, इस फंक्शन के लिए सिर्फ यही टेंस इस्तेमाल करता है. और दिस टेंस इज़ नेवर यूज्ड फॉर रूटीन. नोट इट प्लीज़. ये रूटीन के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होता. सपोज जैसे ही इज वेटिंग फॉर अ बस. वो बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. वो किसके इंतज़ार में हैं? बस के इंतज़ार में हैं. अभी इंतज़ार चल रहा है, इसमें कोई रूटीन नहीं है और बाकी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ इंतज़ार चल रहा है. तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ वेटिंग फॉर अ बस. फर्दर वी आर कमिंग. तो वी डिस्कस अबाउट continuous tense and we are discussing about is, am, are. Is, am, are. Now is, am, are, is applied with third person singular, he, she, it या single name के साथ. are is applied with we, you and they के साथ. और am is applied with I के साथ. Now the negative and interrogative sentences. Negative and interrogative sentences. Negative and interrogative sentences में when we have the helping verbs, जब हमारे पास helping verb होते हैं तो then we have no need of applying anything. और उसी helping verb को बाद not लगा देते हैं and then comes the main verb. Suppose he is not waiting here. वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे. यहाँ पर वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे. ठीक है. आई एम नॉट
डूइंग इट, मैं ये काम नहीं कर रहा, ठीक। दे और नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, राइट। तो दीज आर द नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस इजी है जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और एज एम आर के बाद आप नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा कि व्हेन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वाज देयर इन अफर्मेटिव वी हैव नो एनी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने डू एंड डज लगाया, और यहाँ पर ऑलरेडी वी हैव द हेल्पिंग वर्ब, सो देयरफॉर इट विल नॉट बी द वेरी प्रॉब्लम फॉर अस टू गो फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड सो इज द केस ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस, just SMR will come before the subject, such as are they playing cricket outside, question mark, right? Am I waiting for you, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इज ही यूजिंग कंप्यूटर, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी, जस्ट हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, दे इज सब्जेक्ट, आई इज सब्जेक्ट, ही इज सब्जेक्ट। जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब कम्स आर, एम, इज, आर दे, एम, आई, इज, ही, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। सो वी लर्न टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर वन फंक्शन, एंड इट्स फंक्शन इज टू शो गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन वर्क, गोइंग ऑन समथिंग, वट एवर वी आर डूइंग और वी आर शोइंग समवन एल्स इज डूइंग, ठीक। तो देन वी यूज़ द कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में एक बार नोट कर लें कि कंटिन्यूअस टेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है वो इंग फॉर्म लगता है, एंड कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी लगते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी लगते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, एंड दे, और, इज, एम, और। व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर दे प्लेइंग, वो कैसे खेल रहे हैं। सो दीज आर ऑल द कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ ये शो करना होता है कि काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है, और जो काम अभी चल रहा है उसके बारे में कंटिन्यूअस टेंस बताता है। सो नाउ वी विल मूव फर्दर। Okay, we learned present continuous tense. Now there is another continuous. This is the continuous only, and there is another continuous, present perfect continuous. This is also continuous. See, present perfect continuous. Now what is the function, what is the difference? It also shows going on action, going on एक्शन। सिमिलरिटीज बता रहा हूँ दोनों में, दोनों टेंसेस में सिमिलरिटी बता रहा हूँ। गोइंग ऑन एक्शन, एंड इट आल्सो टेक्स इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स बोथ द टेंसेस टेक इंग फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बोथ द टेंसेस शोज गोइंग ऑन एक्शन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हाट शुड बी द डिफरेंस? व्हाई टू द टेंसेस आर द सेम? बोथ द टेंसेस आर नॉट सेम, ओके, बिकॉज अगर सेम होते तो दोनों टेंसेस अलग नहीं होते, एक ही टेंस होता। बोथ द टेंसेस आर नॉट सेम। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। वन शोज ओनली गोइंग ऑन एक्शन, अनदर शोज गोइंग ऑन एक्शन विथ टाइम पीरियड। ये जो काम अभी चल रहा है ये कब से चल रहा है? सुबह 8 बजे से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है, 10 घंटे से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है। तो कंटिन्यूस टेंस का जो फंक्शन है, इट शोज गोइंग ऑन एक्शन विथ इनिशियल टाइम पीरियड। ये बात नोट कर लें, ये इसका फंक्शन क्या है? इट शोज गोइंग ऑन एक्शन विथ स्टार्टिंग टाइम पीरियड।
काम जब से शुरू हुआ और उसी टाइम पीरियड से ये काम शो कर रहा है कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, हम सुबह से क्लास अटेंड कर रहे हैं, बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं, वो सुबह से खेल रहे हैं या 2 घंटे से खेल रहे हैं या 1 घंटे से खेल रहे हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इट शोज़ गोइंग ऑन एक्शन, कंटिन्यूस एक्शन विथ स्टार्टिंग टाइम पीरियड। इसमें भी काम जारी रहेगा और इसमें भी काम जारी रहेगा। ये सिर्फ ये दिखाता है कि इसमें काम चल रहा है, इसमें काम चल रहा है, और ये दिखाता है इसमें काम चल रहा है कितने घंटों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, कितने दिनों से। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इट शोज द गोइंग ऑन एक्शन विथ स्टार्टिंग टाइम पीरियड। मीन्स गोइंग ऑन एक्शन भी है और स्टार्टिंग टाइम पीरियड भी है। जो एक्शन चल रहा है ये कब से चल रहा है, ठीक है। सो स्टार्टिंग टाइम पीरियड इज नेसेसरी फॉर दिस टेंस, ठीक है। दे आर चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज। If we can say कि children are making noise for 2 hours, तो it is wrong। अगर हमें ये बताना है कि बच्चे जो 2 घंटों से शोर कर रहे हैं या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो हमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज़ द वर्ड फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, नाउ सी, इसके हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन एंड हैज़ बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये इंग फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स कंटिन्यूस जहाँ भी होगा एज वेल एज द अटैच्ड कंटिन्यूस। दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस होगा तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी अप्लाइड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। और नाउ सी, have been is applied where we apply or. Suppose I, we, you, they. Here we apply have, and when we have the subject like that, third person singular. Third person singular कौन से, he, she, it या single name Ali, any singular name, तो then we apply has been and have been। हैज़ बिन ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगल नेम के साथ। एंड देन व्हेन वी हैव द सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, देन वी अप्लाई हैव बिन। अच्छा, हैज़ बिन एंड हैव बिन, वी लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ हैज़ बिन एंड हैव बिन। तो हैज़ बिन कहाँ इस्तेमाल होता है और हैव बिन कहाँ इस्तेमाल होता है। नाउ सी, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है जो एडिशन है, वो है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। Use of since and for what? For initial time or starting time, plus use of since or for। since और for के सवा ये टेंस नहीं बनेगा, और since और for हम जब लगाएंगे तो then we will complete this tense। okay, so now see, she has been waiting for 2 hours। वो 2 घंटों से इंतज़ार कर रही है। कितने टाइम से? 2 घंटों से इंतज़ार कर रही है। जब हमारे पास टाइम पीरियड होगा तो हम फॉर लगाएंगे, और जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम सिंस लगाएंगे। अब आप देखेंगे दिस थिंग इज़ इम्पोर्टेंट ये फॉर दिस टेंस। अगर हम कहते हैं कि शी हैज़ बिन वेटिंग तो इट इज़ कंटिन्यूस, शी इज़ वेटिंग सही होगा। इट विल नॉट बी द करेक्ट वन हियर, इट विल नॉट बी द करेक्ट वन। ठीक, अगर हम कहते हैं शी इज़ वेटिंग फॉर 2 hours तो वो गलत होगा, फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, शी हैज़ बिन वेटिंग फॉर 2 hours। तो इसको नोट करें कि ये जो टेंस है, यहाँ पर जो टाइम पीरियड हम दे रहे हैं कि ये जो वेट है, इंतज़ार है, ये कब से चल रहा है? 2 घंटों से। ये जो इंतज़ार है, गोइंग ऑन एक्शन जो चल रहा है, ये 2 घंटों से चल रहा है। ओके, तो ये 2 घंटों से जो वेट चल रहा है, हमें इसको समझना है। नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सपोज व्हेन दे आर प्लेइंग फॉर 2 hours,
Now see, because we have mentioned the time period also, so it is not continuous, it should be perfect continuous, right? So it should not be like that, it should be like here, they have been playing for 2 hours, right? So now see, this is the role of perfect continuous. If you are not going to apply time period, then suppose it is also wrong, such as she has been cooking. Now it is also wrong, because in this way we have to mention the time period. Without time period this sentence will not be complete one. So key देखिए, since morning, since morning, she has been cooking since morning. This is the correct. Now again you will ask कि has been हमने सीख लिया, we learned कि has been कहाँ लगता है, he, she, it या single name के साथ लगता है, have been कहाँ लगता है, I, we, you, they के साथ लगता है. Now since और for कहाँ लगता है, use of since and for. Now देखिए, whenever we are going to point out the time, then we apply since. Whenever we are using the period of time, then we apply for. What is the period of time? Now see, minutes, hours, days, months, years, ये period of time है. जब आखिर में आ रहा है, टाइम के बाद आ रहा है क्या, मिनट्स, आवर्स, ठीक, डे या डेज, वीक्स, ठीक, और उसके बाद मंथ्स, और उसके बाद ईयर्स. तो दिस इज व्हाट पीरियड ऑफ टाइम. ये एक पीरियड है, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, राइट, और 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 साल, 2 साल, 1 सदी, 2 सदी. तो ये पीरियड ऑफ टाइम है. इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं. और सिंस कहाँ है, जहाँ पर ओ क्लॉक लगाते हैं हम. ओ क्लॉक पता है क्या होता है, 9 ओ क्लॉक, या हम पीएम नोट करें, पीएम या एएम, 9 बजे, ठीक, 4 बजे, 5 बजे, जहाँ पर हम बजे लगाते हैं वहाँ पर पीएम या एएम लगाते हैं, ठीक. और उसके बाद जो है, अगर मॉर्निंग लगा रहे हैं तो हम कट कर रहे हैं डे को, सपोज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या फिर हम डे का कोई नाम बता रहे हैं या डेट लिख रहे हैं, सिंस, डे नेम, डे नेम या डेट, उसमें भी हम सिंस लगाते हैं. या ईयर नेम, जैसे हम कहते हैं सिंस 2005. I have been serving at Government College, University Hyderabad since 2005. Now see, हमने साल का नाम लिख लिया, ठीक. अब दिन का नाम सिंस मंडे, या मंथ का नाम सिंस जनवरी, या डेट सिंस 2nd Feb. They have been playing since 2nd Feb. तो ओ क्लॉक के लिए हम सिंस लगाते हैं, पीएम एम के लिए सिंस लगाते हैं, डे नेम के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, डेट के लिए 1st, 2nd, 3rd जो भी हो उसके लिए भी सिंस लगाते हैं. साल के नेम के लिए सिंस 2005, सिंस 2010, ठीक, सिंस 2019, तो इसके लिए भी हम सिंस लगाते हैं. और इसी तरीके से डे या डेट के लिए भी हम सिंस लगाते हैं. तो दैट इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर. नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. You have to use the since and for, and this tense is very much important, and therefore we learn 2 tenses today. Continuous tense, present continuous tense, जिसकी हेल्प में वर्ब क्या है, is, am, are, उसमें भी एक फॉर्म लगता है. और उसके बाद हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैज़ बिन, हैव बिन,
उसमें भी इंक फॉर्म लगता है, मगर उसमें एडिशन होता है किस चीज़ का, टाइम पीरियड का, और वो सिंस और फार का। सिंस कहाँ लगता है, मैंने आपको बताया पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। ओके, थैंक यू सो नाइस।